internal resistance will be ऊपर product in numerator, sum in denominator. Because after all, these two resistances are connected in parallel. So this, by using this method, you can solve very tough questions very fast. Now it's time for some questions. सर अपन ने करंट निकाल लिया ना. आवाज कट रही बेटा, आवाज कट रही. सर करंट निकाला था ना अपन ने. नहीं, ई इक्विवेलेंट निकाला था बेटा, ई इक्विवेलेंट. मतलब करंट का यूज करके निकाला था ना. वो अपन ने केवीएल से निकाला है. आई विल टेल यू डेरिवेशन लेटर. ओके, now at this time we are ready to solve a lot of questions. Now one question is coming in my mind. What if battery is connected like this? What if positive terminal of one battery E1 connected with negative terminal of E2? Then what will be E equivalent? Can you tell me? E1 R2 minus E2 R1 Simple. upon R1. Very good, very good, very good. E equivalent will become, Muskan, E1 R2 minus E2 R1 divided by R1 plus R2. Just remember, you need to write minus at the place of plus here. Remember it, this sign. If opposite terminals are connected, then E equivalent will become like this. So whenever you have two batteries with different EMF connected in parallel, you can write a single battery at the place of these two batteries with this EMF. And the resistance will be, and you can write internal resistance. This is EMF, right? And the equivalent resistance you can write R1 R2 upon R1 plus R2. Any doubt in this, Muskan? Apar? No, sir. No, Okay. sir. Okay. Now this is integer type. सर Next कौन से हाँ. सर कौन से ई के साथ सर साइन नेगेटिव लगाएंगे सर, ये कैसे पता चलेगा? छोटे वाले के साथ. ठीक है, जिसका प्रोडक्ट कम आ रहा हो उसके साथ. ठीक है, बहुत बढ़िया पार्थ. गुड डाउट. very high level doubt. Good standard. Now next question is from IIT Advanced 2011, integer type. Okay, I told you only shortcut. I have not explained to you anything. Okay, we are doing only shortcut. Let's see. This is 6-volt battery. Everywhere teachers will teach you parallel combination of same cells, but teachers will not teach you parallel combination of different cells. IIT will ask same thing. They want voltage across AB. Voltage across AB. Find voltage across AB. कैसे करना है? E1 into R2. E1 into R2. 5/3. Plus E2 into R1. 3 into 1 divided by R1 plus R2. Divided by R1 plus R2. Means 2 plus 1 is equal to E equivalent. So you got E equivalent as 12 plus 3 by 3. So 15 by 3, you got 5 volts. So can you believe this? It's the IIT advanced problem. Integer type. And you got answer so easily. Understood my shortcut? Yes, sir. Yes, sir. Muskan understood? Yes, sir. Anushka? Noor? Yes, sir. Noor, are you alive? Okay. Aryan जिंदा हो? स्वर्ग सिधार के? मरना नहीं, आइए. But Aryan, remember this is IIT advanced class. Okay. I will not take care of NEET student. If you are understanding everything, then you are. समझ आ रहा है? My NEET students are able to understand? Yes, Serious? sir. Yes, sir. Okay, that's good. That's good. But I don't care even if you are not able to understand, I don't care. Because this is IIT advanced. NEET batch is from 3:30 to 4:30. Okay. Now next question is from IIT Mains 2015. They want current in 1 ohm resistance. Find current
in 1 ohm resistance. Pritpal or Sara will give answer, or Rohit. Find current in 1 ohm resistance. Other student will send me answer through chat. क्योंकि मुझे लग रहा है ये लोग सो गए हैं. प्रितपाल सो गया है? हाँ सर. जब तक प्रितपाल मजाक नहीं करे ना, मेरा मजाक नहीं बनाए, तब तक मुझे भी चैन नहीं मिलता. आदत पड़ गई अभी. क्या सर खराब आदत है, बदल लेनी चाहिए. सही बोल रहे हो तुम एकदम. चलो, फाइंड करंट थ्रू 1 ohm. This is point P, this is point Q. अरे भाई तुम लोग कर कॉपी चेक करना यार, मैं भूल जाता हूँ. अच्छा, आपको ना मेरे को फोन गूगल पे से 50 रुपए डालने होंगे अगर आप चाहते हो कि मैं आपका रिजल्ट सरेआम ना बताऊं. ठीक है? सर लेट कर दिया आपने. लेट कर दिया है, लेकिन अब आज भैया कितना काम रहता है मुझे, तुम लोग सोच भी नहीं सकते. पता है, मैं एक दिन में 9 क्लास लेता हूँ, 8 तो लेता हूँ मिनिमम. कभी कभी 9 हो जाती है. राजुल सर बहुत काम कराते, पैसा देते नहीं. अब इतना टाइम थोड़ी लगाना. आईआईटी मेंस की औकात क्या है? खत्म क्वेश्चन. देखो मेरी बात सुनो. इसको सर्किट को रीड्रॉ करो. इसको एक्सेप्ट ही नहीं करो. बोलो सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है. ठीक है? ये आप एक 9 वोल्ट और 2 ओम को ऐसे बना दो. 2 ओम और 9 वोल्ट को ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत? फिर बीच में जो 1 ओम है, 1 ओम को बीच से हटा के कहीं और लगा दो. समझ रहे हो? उसके बाद आप देखना 6 वोल्ट का नेगेटिव ऊपर की तरफ है, पी के साइड नेगेटिव है. तो देखो फिर मैं 6 वोल्ट लगा रहा हूं इधर पे. 6 वोल्ट के साथ 3 ओम है. क्या मैं इसी सर्किट को ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूं? हाँ या ना बोलना बस. कैन आई रीड्रॉ सेम सर्किट अगेन लाइक दिस? यस और नो? यस सर. Yes. Is this allowed? Is this allowed? Yes, What? it is First it is I allowed. check. हाँ, बस आपने आगे पीछे किया, ऊपर नीचे आपने देखना, पोजीशन नहीं बदली है. Still this entire combination is in parallel with 1 ohm, and this entire combination is in parallel with 1 ohm. Do you understand that? Yes, समझ में sir. आया? क्वेश्चन देखो कचरा कर दिया अपन ने, मजाक बना दिया क्वेश्चन का. चलो अब आंसर दो आप जल्दी से. कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला या माइनस वाला? माइनस वाला. Minus वाला. जल्दी से कर दो और एक बैटरी लगा दो. 2 की जगह आंसर आ गया. B. Who is this B? Akshat. Akshat. Very good. भैया मुझसे करंट इलेक्ट्रिसिटी सीख गए ना, तो मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट भी उतना ही भयंकर सिखाऊंगा जितना तेज करंट इलेक्ट्रिसिटी सिखाऊंगा. बिल्कुल भरोसा रखना मेरे पे और अपने आप पे. तो सबसे पहले मैं P और Q ड्रॉ कर रहा हूं, और P और Q के बीच में मैंने 1 ओम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया. अब 9 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल P से जुड़ा है. देखो 9 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव P की तरफ है और नेगेटिव Q की तरफ है. ठीक है? इसी तरह से जो 6 वोल्ट की बैटरी है बच्चों,
बच्चों जो 6 वोल्ट की बैटरी है उसका नेगेटिव जो है वो पी से जुड़ा है और पॉजिटिव क्यू से जुड़ा है। तो मैंने बस सर्किट को रीड्रॉ किया है, कुछ भी नया नहीं किया है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन खत्म है। मुस्कान समझ आया ये? यस सर। तो अभी क्या होगा कि E1 इंटू R2 9 इंटू 3 माइनस E2 इंटू R1, बड़े में से छोटे को घटाना है, याद रहे बड़े में से छोटे को घटाना है, अपॉन R1 plus R2, so 2 plus 3, so we got E equivalent as 18 minus 12 by 5, so you got 6 by 5 volts, 6 by 5 volt आ गया E equivalent। बड़ा कौन है, 6 वोल्ट या 9 वोल्ट? सर वो 27 है, 27 ओ minus सॉरी 12. सॉरी 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 सॉरी, तो फिर कितना आएगा? 27 minus 12. तो फिर कितना 3 volt. ओवरऑल कितना आ रहा है? 3 वोल्ट। ओके, ट्वेंटी सेवन माइनस 12 डिवाइड बाई 5, 27 में से 12 गए तो कितने आ रहे हैं? 15, 15 बटे 5, 3 वोल्ट। अब ये 3 वोल्ट का पॉजिटिव में ऊपर रखूं कि नीचे रखूं? विच बैटरी इज बिगर? विच बैटरी इज बिगर? बड़ी वाली बैटरी। 9 volt, 9 volt battery, correct. 9 volt battery is bigger, so I will keep 3 volt upward. I'll keep positive terminal of 3 volt upward along 9 volt battery. And what will be the internal resistance, बच्चों? R1 R2 upon R1 plus R2. This will be equivalent resistance. Okay, so this 3 2s are 6 divided by 5. So 6 by 5 is your internal resistance. 6 by 5 ohm. Doesn't matter, you can apply this upward or downward, doesn't matter at all. This is your 1 ohm P to Q. So it is clear that current is going to flow from P to Q. Current is going to flow from P to Q. So option number B and option number C is wrong. Now what is total resistance? What is total resistance in the circuit? Total resistance in the circuit is 6 by 5 plus 1. 11 by 5 ohm. This is R equivalent of the resistor. Now what is current in the circuit? Current is equal to V by R. What is V? V is 3 volt. R is 11 by 5. So you get 15 by 11. 15 by 11 means 1.3 ampere P to Q. This is your answer. This is IIT Mains 2015 for you. Understood? सर थोड़ा नीचे करना सर। KCL और KVL से भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो और करो, लेकिन मेरे से मत बोलना क्योंकि वो टाइम ज्यादा लेगा। सर सिर्फ Time ओम्स का। लॉ से हो जाएगा, हो गया प्रूफ, मैंने कर चल लिया। चल सर नहीं लगा KVF, सर KVF कुछ नहीं लगा, हो गया ओम्स लॉ से। सॉल्यूशन भेजो, देखते हैं। को स्क्रॉल करना थोड़ा सा नीचे। थोड़ा सा और। सर अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स दे दिया तो KCL और KVL ही अप्लाई करना। यार ना जब स्थिति बहुत खराब हो जाएगी ना तभी केसीएल और केवीएल यूज करूंगा मैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बिना केसीएल बिना केवीएल के नेस्तनाबूद करके बताऊंगा तुम लोग को। हाँ, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवीएल लगाऊंगा ही नहीं, सिखाऊंगा ही नहीं, तुम लोगों को केवीएल भी सिखाऊंगा। ठीक है, अब तुम 2019 का 8 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन करो। ठीक है, रुक जाओ और कठिन ढूंढता हूं मैं। मैंने भेज दिया है। हाँ
हम उस पे काम करेंगे, अगर वो तुम्हारा सही निकला तो फिर उसको आगे भेज देंगे यूनिवर्सिटी आगे बड़ी बड़ी। आगे भेज देंगे मतलब इंडिया के बाहर भेज देंगे क्वेश्चन को, है कि नहीं? फॉरेन यूनिवर्सिटी भेज देंगे। फालतू सा प्रूफ है सर, इतना दूर क्यों भेज। चलो अब 10 जनवरी का एक क्वेश्चन कर लेता है आईटी मेंस का। अरे यार मुझे बहुत आसान लग रहे हैं सारे क्वेश्चन, मुझे कोई कठिन क्वेश्चन नहीं मिल रहा। गूगल पे डालो सर। ये भाई देखो तुम लोग इतना पढ़ाई पे ध्यान लगा लो कितना अच्छा रहे। चलो ये वाला करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हमें एक कठिन सवाल मिला है। मैं सीख रहा हूँ ना, आईपैड का बेटर यूज कर रहा हूँ ना डे बाय डे। बस सर आप गुड नोट्स ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो। अरे 599 मांग रहा, फ्री वाली नहीं मिल रही, कसम से भाई पेड कसम वाला से। आता है सर, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। पेड वाला चाहिए आपको। फ्री में हाँ दिलवा दे, पेड वाला फ्री में भाई यार। मैं तो, मेरे पास मतलब पैसे की इतनी कमी है, क्या बताऊं तुझे, क्या हो गया। राजुल सर नया गणित बता रहे हैं। अरे यार ये कैसा है, चल का नहीं रहा, फिर जा। हम्म। दिस इज जेई मेंस 2019 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट। मिनिमम टाइम में करना है, तब बात बनेगी। ज्यादा समय नहीं दे सकता। सर पूरा नहीं दिख रहा। They want potential difference between A and B. Find VA minus VB approximately. अब देखना वैल्यूज क्या दिया, R1 दिया है 1 ओम, सब जगह R1 1 ओम दे दिया, और R2 दे दिया 2 ओम। दिख रहा है कार्तिक क्या? E1 2 वोल्ट दे दिया, E2 4 वोल्ट और E3 भी 4 वोल्ट। बताओ। आईटी की लाइन नहीं दिख रही सर। हम्म, क्या नहीं दिख रही बेटा? बच्चों दिख रहा है पूरा पूरा? हाँ सर। करो। R3 कहाँ पे सर? R3 राइट में होगा और R3 कितना है सर? R3 है ही नहीं। R3 कहाँ है? R1 और R2 है बस। चश्मा लगा लो बड़े भाई।
I want fastest answer. 14/9. 14/9 अप्रोक्स कितना हो रहा है? 1.5. 3.3 हो रहा है इसका आंसर. आंसर इज ठीक है. अब देखो, एक तीर से दो निशाने करने का बखत आ गया है. ठीक है राजू, लस्सी वर्मा लाके दे अंदर से. दर्शिता, रिशिता और मुस्कान को गिफ्ट मिलेंगे. किस बात की? अच्छा, क्या गिफ्ट है? घर भेजोगे? गजब यार, हमने भी बनाया वीडियो, हमको भी दो. 3 बच्चों को गिफ्ट मिल रहे हैं. बहुत ही चौंकाने वाली बात है. देखो बच्चों, देखो रामबाण इलाज बता रहे हैं ऐसे सवालों का. ऐसा करो कि इधर पे ए बना दो, इधर बी बना दो. ठीक है. अब एससी वर्मा, इधर ए बना दो, इधर बी बना दो. अब ये है R2 की वैल्यू थी 2 ओम, और ये मैंने बना दिया E2 है 4 वोल्ट. ये 4 वोल्ट. ठीक है. ये देखो, ये लगा दिया मैंने, आड़ा करके लगा दिया. चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है. चलेगा. अब हाँ, अब ए और बी के बीच में, हाँ रख दो, ए और बी के बीच में ही E3 लगा रहा हूं. 2 R1 थे ना, 1 ओम, तो वो 2 ओम हो गए. और जो E3 था बच्चों, वो भी 4 वोल्ट था, वो भी 4 वोल्ट हो गया. ये लो. ठीक है. उसके बाद अब मैं लगा रहा हूं E1 के पास भी 1 ओम थे. ये 1 ओम को 2 ओम कर दिया है, तो सीरीज में ही, तो ओवरऑल 2 ओम ये भी हो गया. और ये हो गया तुम्हारा 2 वोल्ट का बैटरी प्लस 2 वोल्ट बैटरी. अब ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं. ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है. इसको कैपेसिटर में भी लगाऊंगा. एक शॉर्टकट ऐसी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत आपने ध्यान. रेजिस्टेंस पहले लगा दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ? कैसा रेजिस्टेंस आगे पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ सर, एक पहले था, एक बाद में था. हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. रेजिस्टेंस सीधा लगाओ, उल्टा लगाओ, आगे लगाओ, पीछे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो अपनी ब्रांच में ही है. ठीक है. तो 1 ओम ऊपर लगाओ, 1 ओम नीचे लगाओ, तो इससे अच्छा 2 ओम एक जगह लगा दो. ओवरऑल सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलीव मी. ठीक है. तो अब देखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए और आपको VAB लिखना हो, तो आप क्या करोगे? ए और बी के बीच में पोटेंशियल, ओम्स लॉ याद करो. V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR होता है ना, राइट? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं तुम लोग को. इसको ध्यान रखो. अब कैसे कर सकते देखना ध्यान से. इन दोनों बैटरी को देखो, अब भी बताया था मैंने. सिर्फ इन दोनों बैटरी को देखो, क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ. हेलो, सिर्फ इन दोनों बैटरी को देखो, पोटेंशियल कितना आएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1. EMF कितना? हाँ, 4 वोल्ट आएगा, क्योंकि जब पैरेलल में बैटरी जोड़ते EMF 4 वोल्ट ही रहता है. इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन्स सेम और इंटरनल रेजिस्टेंस विल बिकम 1. ओके. अगर तुम शॉर्टकट से करोगे तो भी 4 वोल्ट आएगा. करके देख लो. 4 2 8 प्लस 4 2 8 है ना, 8 8 16 divided by 4, you will get 4 volt. And 2 ohm in parallel, you'll get 1 ohm. Okay, so you got 1 ohm and 4 volt in parallel. Now your 3 loop circuit is converted into 2 loops. Okay, this is 2 volt and this is 2 ohm. This is point A, this is point B. What next, apart? Tell me. What next? This into this, 2 into 1 plus
4 into 2 10 by 3. divided by 3. What you are getting? 10 24 by plus 2. 26 by 3. Okay. How much will you get? सर ये तो 8 से ज्यादा आ रहा है. बताओ ना, ये कितना आ रहा है बताओ पहले तुम. सर वहाँ 6 नहीं होगा. Sir, 10 by 3. 4 sir. कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने. हाँ. हाँ, 4 2 8. 4 into, हाँ 4 into 2 रहेगा. My fault. Okay. तो 8 plus 2 10. हाँ 10 by 3. वही मैं सोचूं. 3.3 volt. So like this, I used to do mistake in the last step, and the internal resistance will be 2 by 3. Okay. So we got final answer. The potential between A and B will be, between A and B, resistance is 2 by 3 ohm, and the EMF will be 3.3 volts. This is your IIT mains 8th April first attempt paper. Now tell me, क्या ये बहुत difficult था? क्या ये difficult था? Tell me. नहीं सर, नहीं था. नहीं था, बिल्कुल difficult नहीं था. आपको 3 लूप से 2 लूप बनाने आ गए. हाँ, हाँ 3 से सर. 2 लूप बनाने आ गए तो सब कर लिया. ठीक Yes, है. अब देखना, 8 अप्रैल को ये क्वेश्चन आया. फिर 2019 11 जनवरी वाले मेंस में दोपहर वाले पेपर में क्या आया था. सीरियस. देखो मजा तभी है जब एकदम एक्सप्लोर कर डालो, है ना, सब पता कर डालो. देखना 2019 11 जनवरी सेकंड शिफ्ट में उन्होंने पूछा ये सवाल. अब तुम सोचो कि कितना आसान है. बेचारे मेंस वाले नए क्वेश्चन नहीं बना पा रहे. हमारे जैसे एवरेज टीचर ने क्वेश्चन पेपर को ऐसे डिकोड करा कि अब मुझे पता है कि क्या पूछेंगे. वो जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर पूछ ही नहीं पाएंगे. ये देखो उसी तरह का एक और क्वेश्चन दे दिया अगेन. और हमें क्या करना है? 3 लूप में से 2 लूप में कन्वर्ट करना है, 2 लूप से फिर 1 लूप में कन्वर्ट करना है. What they want potential difference between A and B. तो क्या करोगे? पहले इन्हीं दो को सॉल्व कर लो. ओके, पिंक यूज कर लेते हैं. 2 into 1, 1 into 1. Let's solve this loop first. What equivalent we will get? 2 plus 1, 3 by 2, 1.5 volt. Agree or not? E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2. Do you remember this? Do you remember this or not? Okay, let's apply this. 2 into 1, 2. 1 into 1, 1, 2 plus 1, 3, 3 by 2. They're 1.5 volt. 1.5 volt, and the resistance will be 0.5. Okay, now keep the lower one as it is. Sit. I need some more space. Look. Shit. So this became 1.5 volt. Internal resistance 0.5 ohm, and we have another battery left, 1 ohm, and potential is 3 volt. Now what will be the resultant? इसको कीड़ा चला जाएगा ना, इसको अच्छे से. Okay. Now 1.5 into 1 and 3 into 0.5. So you will get 3 into 0.5 plus 1.5 into 1
डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ रहा है यार बच्चों, सही सही बताओ। 1.5 प्लस 1.5 आ गया 3। 2. 3 divided by 2 volt. Yes, 2 volt. I also got 2 volt. And what is the resultant of 0.5 and 1? Doesn't matter. हाँ, चलो निकाल लेते हैं, but 1/3. जरूरत नहीं है। 1/3. Correct, 1/3. Okay, so our final result is 2 volt, 1/3 ohm. So final answer, potential difference between A and B is 2 volt. ये लो आंसर, है ना? ठीक है, काफी है आज के लिए, हैं? IIT में सर कितने सारे Yes, 2019 के क्वेश्चन कर डाले और 2015 का क्वेश्चन करा, तो काफी कुछ सीखा आज। और IIT एडवांस का 2011 का क्वेश्चन किया, बट मैं इसको बहुत डिटेल में कल की क्लास में लेके आऊंगा, ठीक है? much big detail you will get in my next class. Okay? Big detail. Okay, bye, good night. थोड़ा ऊपर इसको करना सर। सर हाँ हाँ ठीक ठीक, ऊपर कर रहे, ये लो। इसके पहले वाला क्वेश्चन को, इसको नहीं। सर Is this okay for you? Black slide. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Light black वाले पसंद आ रही बच्चों को। कोई तो मना कर दो यार। तुम्हारा कोई इधर तो बोर्ड भाई नोट्स तुम्हारा। दे दिया करो सर। नोट्स बिल्कुल, आज मैंने स्क्रीनशॉट लेना सीखा है, आज से नोट्स मिल जाएंगे। This is H and we will upload this class in YouTube as well. This is H. Now how to find resistance of such wire? इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि एक बहुत तगड़ा इमेजिनेशन आपको चाहिए है, एक बहुत बढ़िया इमेजिनेशन। देखो कैसे, आप समझना। लेट्स मेक अ फुल कोन, एक पूरा कोन बना दो आप। एक पूरा कोन बना दे अगर हम, इस तरफ मान लो रेडियस बी है ना? मैंने वायर, जैसे ये कोन का एक पार्ट है वायर, मैंने पूरा कोन ही बना दिया। ये बी है, ये ए है, राइट? अब देखना कि ए और बी के बीच की दूरी h है, ए और बी के बीच की दूरी h है ना? अब आप एक ट्रायंगल के बारे में सोचो, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचो, जिसका एंगल यहाँ पे थीटा है, एकदम सीधी नहीं बन पाई, यहाँ ये एंगल थीटा है, ठीक है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर आप सोचो, और एक आर रेडियस का बीच में ट्रायंगल कोण ले लो। आप बीच में एक अपना अलग कोण बना लो जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है? जिसकी x से दूरी h है, h d से दूरी x है, तो यहां से दूरी हो जाएगी h माइनस x, ठीक है? यहाँ फिर से बना देता हूँ। आप यहाँ पे एक r रेडियस का सर्कल ले लो या r रेडियस की डिस्क जैसा कुछ ले लो, इसकी रेडियस स्मॉल r है, राइट? लेट्स यूज डिफरेंट कलर्स। Suppose this distance is x. Suppose this distance is x, then what is this distance? This distance is h minus x. Is this okay? यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? हाँ? Now imagine a triangle. एक triangle imagine करो जिसमें tan थीटा की वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है? ये एक बड़ा सा triangle imagine करो, ये right angle. Can you see a right angle triangle? What is value of tan theta in this right angle triangle? What is this perpendicular? Very good. This is b minus a. So value of tan theta can be written as b minus a upon h. Hopefully आप लोग को समझ आया है ना? अब यहाँ पे ये बड़े वाले ट्रायंगल में एक छोटा वाला ट्रायंगल भी तो है, मैंने ये बड़े ट्रायंगल को कंसीडर करके लिखा है। यही काम मैं छोटे वाले ट्रायंगल के साथ भी कर सकता था। ये यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल मान लूं तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये पूरी रेडियस r है, b में से r घटाना पड़ेगा, है ना? और बेस आ जाएगा h माइनस एक्स, है कि नहीं?
या हाँ सही है। एक और tan थीटा हम लिख सकते हैं, दैट इज b माइनस आर अपॉन, यार ये वाला ना h माइनस एक्स मानो और इसको x मानो, तो ये आ जाएगा x। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ कि नहीं? नई स्लाइड में फिर से एक बार बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, नई स्लाइड में एक बार फिर से बताता हूँ। फिर से हम एक वो वायर बना देते हैं, कोनिकल वायर बना देते हैं। सपोज यू हैव अ कोनिकल वायर लाइक दिस, okay, this is b, this is a। अब अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल ढूंढो, सीधे चले जाओ, एकदम सीधे चले जाओ बच्चों, यहां तक, यू विल फाइंड अ राइट एंगल ट्रायंगल, और इसकी ये जो लंबाई है ना, ये आ जाएगी b माइनस ए, और बेस ट्रायंगल का आ जाएगा h। एम आई राइट? तो क्या हम ये लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस? क्या हम ये लिख सकते हैं? एनी डाउट इन दिस? अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं r रेडियस का एक सर्कल मान रहा हूं, बीच में r रेडियस का एक डिस्क जैसा कुछ पोर्शन मान रहा हूं यहाँ बीच में, ठीक है, इसकी रेडियस है r, और इसकी इस वाले a वाले रेडियस वाले हिस्से से दूरी x है, तो ये वाली दूरी हो गई h माइनस एक्स। दिखा तुम लोग को? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या सर? और मान लो इसकी विड्थ, मान लो इसकी विड्थ भी रखी है, इसकी विड्थ मान लो dx रखी है, ये लो, बहुत छोटी सी विड्थ बना दो इसकी, बहुत बढ़िया सवाल है। इसकी जो विड्थ है, अरे यार दूसरे कलर से बनानी थी विड्थ, नॉट अ प्रॉब्लम, अब दिखा देंगे। इसकी जो विड्थ है वो dx है बच्चों, विड्थ दिख गई, विड्थ इज dx, इट्स रेडियस इज r। तो नाउ tan थीटा की एक और वैल्यू लिखो इस ट्रायंगल के साथ। लाइट ग्रीन कलर से एक ट्रायंगल दिखाऊंगा, सब ध्यान से देखना। ये इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू बताओ। r माइनस बाय, हाँ, ये जो हो जाएगा ना, ये लंबाई हो जाएगी b माइनस आर। सही बोला आप r मैंने? हाँ सर, सही बोला है ना? सर ये r माइनस r माइनस ए, r माइनस ए, r माइनस ए, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, पूरी हाइट b है, यहां तक हाइट r है, ये पूरी हाइट, हाँ r माइनस ए, यू आर राइट। r माइनस ए आएगा सर। एक बार और सोच लो भैया, गलत ना होना चाहिए, मैं इंटीग्रेशन गड़बड़ हो जाएगा। ये r है और ये, हाँ क्लियर क्लियर, r माइनस ए, गारंटीड क्लियर, r माइनस ए। तो अब एक और tan थीटा लिख दो भैया जरा, और इसका बेस क्या होगा? इसका बेस क्या होगा? x। तो आपको एक और tan थीटा मिल गया। दूसरे वाले tan थीटा में आप लिख रहे हो r माइनस ए अपॉन एक्स इक्वेशन b। अब a और b के लेफ्ट हैंड साइड सेम है अनुष्का, तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे, तो b माइनस ए अपॉन एच मस्ट बी इक्वल टू r माइनस ए अपॉन एक्स। तो तुम लोग बोलोगे सर आपने क्या कर लिया, इतनी देर से मेहनत कर रहे, क्या ही मिल गया? देखो मैं बताता हूँ क्या मिल गया मुझे मिल गया रेजिस्टेंस, सॉरी रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा था थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। यहां से मैं ये वैल्यू नीचे लेके आ रहा हूँ, r माइनस ए अपॉन एक्स बराबर b माइनस ए अपॉन एच, r माइनस ए अपॉन एक्स बराबर b माइनस ए अपॉन एच। लेट्स ट्राई टू फाइंड वैल्यू ऑफ r माइनस ए हो जाएगा b बाय एच इंटू एक्स माइनस a बाय एच इंटू एक्स, और a उधर चला जाएगा, तो r की वैल्यू फाइनली आ गई, b माइनस ए बाय एच इंटू एक्स प्लस a। समझ में आया?
we get value of R finally. Any doubt in that? प्रितपाल मैंने कोई गलती तो नहीं करी है? समझ आ गया? कोई सर अगर गलती तो नहीं सीधे की? सर अगर सीधे सीधे जो ट्रायंगल बनाया है उसके हाइपोटेनस की अगर इक्वेशन ले लेते तो भी ये आ जाता है। हाँ वो ये आ जाता दूसरी मेथड से, लेकिन अभी जो मैंने किया है वो सब सही दिख रहा है तुम लोग को? रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स समझ में आ गई? यस सर कोई यस। दिक्कत तो नहीं है? चलो अब मैं रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, बहुत केयरफुली देखना है ना। अब मैं सिर्फ इतने हिस्से का रेजिस्टेंस लिखूंगा, सिर्फ ये जो विड्थ दिख रही ना तुम्हें dx, सिर्फ इतने हिस्से का रेजिस्टेंस लिखूंगा। तो ये dx क्या हो गई? अगर मैं बैटरी ऐसी लगा दूं, अगर मैं ऐसी बैटरी लगा दूं तो जो dx है उसका काम क्या है? वो क्या है? dx लेंथ है कि एरिया है? बताओ। dx लेंथ है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब रेजिस्टेंस जब मैं लिखूंगा तो r लिखूंगा या dr लिखूंगा? dr, क्योंकि मैं छोटे से हिस्से का रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ। रो l की जगह dx आ गया डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर, और r की जगह मैं ये रखने वाला हूँ जो मैंने निकाल रखा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ, dr इज इक्वल टू रो dx अपॉन पाई r स्क्वायर, और r की जगह जो हमने निकाला है हम वो लिख रहे हैं। b बहुत ध्यान माइनस से a देखो। बाई h x a b। इतना बड़ा ये b माइनस a अपॉन h x प्लस a का होल स्क्वायर। और अगर अब आपको आंसर चाहिए, तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर पाओ तो कर लो, इसको जैसे आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें और मुझे इसका रेजिस्टेंस बताएं। चलो मैं आपकी एक मदद यहाँ पे जरूर करना चाहूंगा, मैं एक मदद जरूर करना लिमिट तो लिख चाहूंगा। दो। हाँ, लिमिट आ जाएगी 0 टू h। x की वैल्यू मिनिमम कितनी है? x की वैल्यू मिनिमम 0 है और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? h तक जाएगा। तो लिमिट हो गई 0 टू h, है ना। अब इसमें मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको कि इंटीग्रेशन बायो वाले बच्चों से हो जाए, दिमाग नहीं चलाना पड़े। हमेशा याद रखो dx अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर जब होता है, ये इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है a और b का, ये सब फॉर्मूला है। एक काम करो, इसको अल्फा और इसको बीटा मान लो, है ना। हमेशा याद रखो अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपॉन अल्फा इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये आएगा आंसर। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेशन करके आप लोग मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, बताओगे? बोलो हाँ बताएंगे, नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे, आत्मनिर्भर। बेटा चुपचाप इसका जवाब दे देना हमारे पास। ठीक है, अब लिखो, अब अगला सवाल लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी। अगला टॉपिक लिखो एक कॉम्बिनेशन। मिनट सर, स्क्रॉल करना था थोड़ा ऊपर। और ऊपर एचसी वर्मा का प्रॉब्लम है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो देयर इन आंसर। आवाज क्लियर नहीं है आप लोग की, चलो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और ऊपर करना है। नहीं हो पाएगा, प्रिंसिपल आ ही जाता है परेशान करने कहीं ना कहीं से, है प्रिंसिपल। आना पड़ता है सर अब। चलो अब आगे बात करते हैं। क्या बोल रहा था मैं, क्या बोला था मैंने? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ना। यस सर। सर अल्फा एच अपॉन पाई ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब यार मेरे को आंसर याद थोड़ी है, मैं बता दूंगा क्या है आंसर इसका। ठीक है, चलो अब आगे बात करें। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में पहला आएगा याद रहते हैं सीरीज। कठिन क्वेश्चन के थोड़ी रहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कठिन क्वेश्चन की सिर्फ मेथड याद रहती है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि अगर आपने कभी भी सेल्स को सीरीज में कांटेक्ट करा और एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ा, तो जो टोटल पोटेंशियल है ना वो जुड़ जाएगा। मान लो ये ई है, ये भी ई है। मान लो आपने तीन एक जैसे सेल, इन तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, जोड़ दिए, तीन नहीं एन, मान लो ऐसे एन सेल्स आपने जोड़ दिए,
तो 2 जोड़ोगे तो 2e हुआ, 3 जोड़ोगे तो 3e हुआ, और n सेल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? Ne। जब भी एक सेल का दूसरे सेल से अपोजिट टर्मिनल जुड़ा हो बच्चों, तो पोटेंशियल हो जाता है Ne और रेजिस्टेंस हो जाएगा Nr। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, या आप बोल दो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया। तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, लेकिन मान लो अगर पहले वोल्टेज और ईएमएफ में फर्क तो बताओ। वो आएगा, अभी आएगा, थोड़ा और पेशेंस रखो। अब मान लो प्रितपाल जैसा कोई है आपके साथ, तो उसने बोला कि n में से out of n cells, m cells are wrongly connected, m cells are wrongly connected. n minus 2m into e. What is equivalent EMF? वेरी गुड, वेरी गुड। अगर, क्योंकि अगर आप एक सेल उल्टा लगाते हो ना, तो वो एक को लेके डूबता है। देखना कैसे, ये ई है, तो ये इस वाले ई को कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा? जैसे ये दोनों ई तो जुड़ जाएंगे, लेकिन ये वाला ई इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक सेल उल्टा जोड़ने के कारण जो आपका 4e हो सकता था, वो बचा कितना? 2e। समझ रहे हो? अगर ये सब सही सही जोड़ते तो 4e हो जाता, लेकिन हुआ क्या कि ये उल्टा जुड़ गया, तो ना सिर्फ ये डूबा, ये इसको लेके डूबा। समझे? एक ई डूबा, दूसरे को लेके डूबा, तो एक उल्टा जोड़ने से नुकसान कितने का हुआ? एक ई उल्टा जोड़ने से नुकसान 2e का हुआ। समझो बात को। सो व्हेन वी कनेक्ट one cell wrongly, we face loss of 2e potential. We face loss of 2e potential. ओके, तो जब एक सेल गलत जोड़ा तो 2e का नुकसान हुआ। जब दो सेल गलत जोड़ेंगे तब, when two cells wrongly connected, तो 4e का तो 2 into 2e का नुकसान होगा। ठीक है, और जब m सेल्स उल्टे जोड़ दें तब, हमेशा याद रखो, एक उल्टा जोड़ने पे 2e का नुकसान, दो उल्टा जोड़ने पे, when m cells wrongly connected, total loss of EMF will be equal to 2me। समझ आई बात? अपार ने पहले ही बोल दिया था। समझ आया बच्चों? समझ आ गया? Yes, sir. So if out of n cells, m are wrongly connected, then net EMF would be, ऐसे आपके पास n cells हैं, लेकिन out of n, m are wrongly connected, then what will be the total EMF? Come on, tell me. All cells are identical, all has EMF E and internal resistance R. सीरीज में 2 रेजिस्टेंस रहते तो 2R, 3 रेजिस्टेंस रहते तो 3R, और n रेजिस्टेंस रहेंगे तो, if you have n resistances in series, what equivalent you will get? NR. So E equivalent we already wrote, Ne minus 2me. Do you agree? Do you agree this about E equivalent, bachcho? What is equivalent resistance? NR. Resistance has nothing to do with the polarity. Okay, resistance has nothing to do with the polarity. Always remember. Any doubt in this?
बैटरी का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है। हाँ वही तो है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस ही है। ओके समझ आया? सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा समझ समझ आया? अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। बेटा बहुत ध्यान से देखना, अभी क्या है, इसके बाद एक शॉर्टकट आ जाएगी जो आपके सारे कठिन सवाल तुरंत कर देगी। ठीक है, बस थोड़ी देर रुकना, थोड़ी पेशेंस बना के रखना, है ना? अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक। नहीं बताया होता तो पेशेंट ही थे हम लोग तो, इतनी देर पेशेंट सुन रहे थे। चलो खामोश रहो। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहता है, सबसे पहले तो ध्यान रहे कि मैं किस तरह के सेल्स को पैरेलली कनेक्ट कर रहा हूँ। आइडेंटिकल सेल्स। कैसे सेल्स? आइडेंटिकल सेल्स को पैरेलली कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे एक जैसे सेल, दिस इज ई, इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर। ठीक है, मान लो तुम एक और सेम पोटेंशियल का सेल लेके आए हो, इट आल्सो हैज पोटेंशियल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर। ओके, ऐसे तुम लोगों ने एक जैसे एन सेल्स जोड़ दिए। ठीक है, अब तुम एक नोट लिखोगे। क्या नोट लिखोगे? इन पैरेलल पोटेंशियल रिमेन सेम। हाँ या ना? पैरेलल पोटेंशियल सेम रहता है कि नहीं? तो एन एन Yes, एन sir. जोड़ो, इसका एन जोड़ो या आंसर ई हजार है। जोड़ो। हाँ, एन जोड़ो या हजार जोड़ो, ई इक्विवेलेंट कितना आएगा? व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ? ई ई इक्विवेलेंट विल बी ई Sorry. ओनली। ई इक्विवेलेंट विल बी ई ओनली, राइट? तो बट व्हाट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस? आर बाय एन, Sir, है R ना? by N. दो जोड़ो तो आर बाय टू, तीन पैरेलल में जोड़ो तो आर बाय थ्री, और एन पैरेलल में जोड़ो तो आर बाय एन। एनी डाउट इन दैट? एनी डाउट इन दैट? No, sir. नो डाउट ना? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सर स्क्रीन जूम मत करो सर अभी इतनी। सर हेलो सर। Please leave the meeting and reconnect it. Leave the meeting and reconnect it. अब आ गई आवाज? आ Yes, रही sir. सर आवाज। चलो लिखते हैं अब वापस से। दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हु इज होस्ट? वापस, अच्छा मैं ही होस्ट। पेंसिल चार्ज नहीं हुई राजराज। Mixed combination of cells, very important. Now see, suppose we have lot of cells in series combination of same EMF. This is E. Every cell has its own resistance, and suppose all cells are identical. Yes, I am taking very easy example. N cells are in series like this. Okay.
Identical cells all have E potential. Okay, like this we have another branch. In the second branch also we have N cells. Okay, we have another branch like this, bacho. Yes, we have a lot of branch in all over India. We have another branch of N cells like this. So, okay, this branch also have N cells. All cells are identical, all have EMF E, all have internal resistance small r, all has EMF E. How many such branches are connected in parallel? Assume like this, M branches are there. Now can you tell me equivalent EMF? Now can you tell me? Any. Very good, very good, Correct. very good, very good. For one branch, in this one complete branch, how much equivalent EMF you will get? NE and NR, right? Equivalent EMF is NE. फिर से रुक गया. हाँ. जूम बार बार बंद हो रहा है ना. Give me 1 minute, students. Give me 1 minute, students. आ गया वापस? ठीक है. NR हो गया, ये हो गया NE. ठीक है, इसकी जगह. Now second वाले में भी कितने सेल हैं? We have N cells, so total potential. There also total potential will be. NE. Like this, how many branches we have? M. M branches. M branch. So, but in parallel, potential remains same. NE, it will remain NE. You understand that? So finally we can write in parallel potential remains same, and we can write NE. And here we'll get NR upon M, because you will connect internal resistance N times in parallel. So you will be writing like this: NR plus NR plus NR N times. So you'll get M by NR. So finally you'll get Rn by M, right? So this is how you got internal resistance, right? But I was not interested in all these three series combination of cells, parallel combination of cells, mixed combination of cells. Not at all interesting. Now what is interesting? Next thing is very interesting. See what is हर it? branch में अलग-अलग number of resistance. Parallel combination of cell, parallel combination of cell with different EMF is very interesting. Okay, we can solve very, very tough question in minutes, even without using pen. If you know this trick, I'm going to tell you a trick. Suppose this is E1 EMF and its internal resistance is R1, and you have another cell of EMF E2 and its internal resistance is R2. What will be equivalent EMF? Can you tell me? कितना होगा वो? What? E1 upon R1 plus E2 upon R2 till n terms upon 1 upon R2 plus. Oh, yeah, we have only two cells. Why you are going till n terms? हाँ सर, ऐसे ही अगर n लगे हो तो n. नहीं.
You tell me resultant of only these two, please. 2 मिनट सर. Sir, E1 E2 upon E1 plus E2. फिर से E1 What? E2 upon E1. E1 E2 upon E1 plus. very close, but wrong. See this. E1 multiplied by R2 and E2 multiplied by R1. So E equivalent is, everyone, look here. Pay attention. E1 R2 into E2 R1 upon R1 plus R2. This is E equivalent.